ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو، یعنی آج کا دن، متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں
वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आयूनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फ़ॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर सारद करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानबदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तज्ज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहिद मुतकाज़ी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरस्रार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताख़ीर ने मुल्क में लाकानूनीयत को फ़रोग़ दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। ये सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ इस अहम मुकदमे में फ़ैसला सादर करके आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फ़ौरन और ममनूई गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बना रखा है और इससे तासुर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने ख़ुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे। ये 2 करारदादें हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाक़ों में जो सैलाबी रेले आए हैं और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं, हज़ारों की तादाद में मवेशी जो है वो हलाक हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो आज के इजलास से उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो उनके तमाम कर्ज़े माफ़ करे, उनको आफतज़दा इलाका करार दे और उस हवाले से उन्हें तमाम मराहत उनको दिए जाए। ज़रूरी कर्ज़े से में आते हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जनाब वाला मौलाना साहब आप इलेक्शन बारी बारी ऐसे नहीं खालिद साहब आप बात करें, ऐसे नहीं खालिद साहब बात करें। गैर अक्ली कोई मुतालबा हम उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने हुदूद में रहे बस। जी हज़रत साहब।
देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, हम इनके पावर को समझते हैं। सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स पर उनका पूरे प्रोपेगेंडे का दारोमदार है। एक झूठी खबर के पीछे 1000 लाइक्स फेक्स डाल देते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये आवाम की आवाज़ है। हम आवाम की आवाज़ को जानते हैं, हम आवाम की आवाज़ में रहते हैं और हम इनके ये जो छोटी मोटी तितलियाँ आगे पीछे होती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मजबूती से और संजीदगी के साथ, बड़े खुद एतमादी के साथ हम फैसले करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। उस्मान, 1 मिनट में दे रही हूँ जी। उस्मान, मौलाना साहब, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले। उनके ऐसे बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसके ऊपर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक्शन ले। हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिस तरह से इस सिलसिले में हुकूमत के अंदर हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हुए और वो 1-2 दिन में सामने आ रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े जराइम, ये जुर्म का मगरमच्छ है। इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको मिलेगा ही नहीं, जो कानून से अपने आप को बालातर समझता है। अब इसके गिरबान में हाथ पड़ेगा और ऐसा आसान नहीं है कि वो इन चीज़ों को हजम करेगा। कभी कहता है जी अमेरिका ने मुझे हटाया है, अमेरिका तो तुम्हें लाया था। और आपके घर का मकान का E7 में किराया 8-9 साल तक देता रहा है और जिससे ये बात कही है वो कहते हैं मैं अदालत में जाने के तैयार हूँ उनके साथ। जी हाफिज साहब, मैं गुजारिश करूँ आपसे, हमने इस हुकूमत को हटाने से 1 साल पहले जलसों में कहा, मैंने खुद कहा कि मसला जो माशी बहरान पैदा हुआ है ये बड़ा चैलेंज नहीं है। मुल्क को दोबारा माशी तो उठाना ये बड़ा चैलेंज होगा और वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात हमें दरपेश हो रही हैं। और हम आज, मैं कम से कम आप समझेंगे कि शायद वो अपने अंदर की कमज़ोरी बता रहा है, लेकिन अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अनासर मौजूद हैं जो हुकूमती फैसलों को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुराने निज़ाम के तसलसल हैं। इन सब के लिए हमने कहा है कि इसका फ़ौरन इलाज होना चाहिए। मौलाना ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि PDM का इजलास जारी रहेगा और उसमें दीगर जमातें भी शरीक होंगी। क्या आप पीपल्स पार्टी को वापस PDM में शामिल कर रहे हैं और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की उनको भी शामिल कर रहे हैं? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा ये बता दें, क्या आप भी कोई सिस्टम में मुदाखलत हो रही है? क्योंकि अब तक तो यही मौक़िफ़ रहा है कि सब न्यूट्रल हैं। PDM सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान से बड़ा मुजरिम पूरे मुल्क में कोई नहीं, अब उसके गिरेबान पर हाथ पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद साहब, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आपके सामने, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी मकबूलियत कोई नहीं, 1000 लाइक्स के जरिए आप ये बताते हैं कि आप मकबूल हैं और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, कहीं नहीं जा रहे, उल्टा आपके गिरेबान पर अब हाथ डलेगा। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के पहले तो मुझे यही खौफ लगा रहा कि कब मौलाना बिलबिला के रोना न शुरू कर दें मीडिया के सामने। अब बहुत ही बुरा वो मंजर जो है वो लगना था, लेकिन तकरीबन मौलाना ने तो हादी कर दी है। जो वो मरियम औरंगजेब के बकौल रोए पिटे, वही जो काम है वो मौलाना ने शुरू कर दिया। एक बौखलाए हुए शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। मौलाना फजलुर रहमान, पहले तो बात यह है कि वो कहते हैं हम मुद्दत पूरी करेंगे। भाई, आपके पास ये इख्तियार रहा ही कब है आपके पास ये फैसला करने का? ये फैसला तो इमरान खान ने और PTI ने करना है कि आपको कितना देर और इक़्तिदार में रखना है। हम चाहते हैं जो हालात हैं उनमें आप खुद एहसास करें और इस तरह की गुफ्तगू जब आप करते हैं, असल में मसला ये है कि देखिए, फजलुर रहमान साहब का, आसफ जरदारी का कोई खास टेक है नहीं। ये 4 जिलों की पार्टियां हैं, इन्होंने नून लीग को बेवकूफ़ बनाया है और उन्होंने एक तबाही के रास्ते के ऊपर डाला है। और अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं उनके पास क्या गिदड़ संगी है। आप अपनी सिटिंग गवर्नमेंट नहीं बचा सके। 20 सीटों के ऊपर पंजाब में इलेक्शन हुआ, आप उनमें से 17 सीटें जो हैं वो इलेक्शन हार गए। इसके बाद अवाम का इससे बड़ा फैसला क्या होगा? उसके बाद तो आपको अलहदा हो जाना चाहिए था इक़्तिदार से। और बाकी ये जो आप बड़के मार रहे हैं
राइट लेफ्ट सेंटर, ये लोगों ने आपको देख लिया है, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जहां तक इस वक्त पाकिस्तान की अच्छा, फवाद चौधरी साहब अब तक आवाज़ पहुंची? फवाद चौधरी साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं, उनको दोबारा शामिल गुफ्तगू करेंगे। मरियम नवाज इस वक्त गुफ्तगू करेंगे। ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें, जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया और इस फ़ैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फ़ैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो जाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाएं, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखें, फैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को, उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक़ में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक़ में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी। और फिर आप ये देखें, हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती और ये है उस गलती की तस्हीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बाद तस्हीह करनी थी। तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने, सादिक और अमीन का, आप उस गलती की तस्हीह करते हो। सादिक और अमीन ने 4 साल उस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के साथ जो पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही की, अगर आपने गलती की तस्हीह करनी थी तो एक झूठे शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक चोर को, एक मुजरिम को आपने सादिक और अमीन बना के कौम के सर पे 4 साल मुसल्लत रखा। गलती की तस्हीह आपने करनी थी तो आप जो शौकत अजीज़ सदीकी साहब का एक बहुत स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, आप उनकी सुनते। वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा। वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्हीह करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज़्यादती हुई, जो नाइंसाफ़ी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्हीह करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफ़ी ना मांगते, नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज़्यादतियों पर दूरबीनें लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं। लेकिन आपने वो नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती को बरकरार रखा, बल्कि बजाय इसके कि तस्हीह करते आप ज़्यादती दर ज़्यादती कर रहे हैं। और आपने किस तरह कल परसों नवाज शरीफ के साथ फिर ज़्यादती की वो भी सुन लें।